Good morning, guys. This is your friend Gagan, and welcome to Gagan's IELTS Brainry. Today, I'm back with a new topic, a topic of friends. You will need this topic in speaking part 1, 2, and 3 even. In this topic, you're gonna learn some new vocabulary, some idioms, and very, very useful language along with the phrasal verbs too. So stay tuned till the end. I'll give you the sample answers including everything that I talked about. So the first question that we get is, do you have many friends? First question हमें part 1 में क्या आता है, क्या आपके काफ़ी दोस्त हैं? I'm pretty shy and introverted. Introverted बंदा कौन सा होता है? जो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, अपने आप में रहता है, ठीक है. शाय मतलब शर्मीला, कि मैं बहुत शर्मीला और इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ. सो आई जस्ट हैव हैंडफुल ऑफ क्लोज पाल्स. सो मेरे जस्ट थोड़े से, हैंडफुल मतलब थोड़े से क्लोज फ्रेंड्स हैं, पाल्स मतलब दोस्त, ठीक है. टू होम आई रियली वैल्यू, जिनकी मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ. दीज आर दोज पीपल हु गो थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन मतलब डिफिकल्ट टाइम्स, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ चलते हैं, विद मी एंड ऑलवेज स्टैंड बिसाइड मी नो मैटर वॉट, और हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं चाहे कुछ भी हो. ओके, सो क्या था हमारा आंसर? आई एम प्रीटी शाय एंड इंट्रोवर्टेड, सो आई जस्ट हैव हैंडफुल ऑफ क्लोज पाल्स टू whom I really value. These are those people who go through thick and thin with me and always stand beside me no matter what. Our next question is, how important are friends to you? Friends आपके लिए कितने important हैं? My bosom buddies, इसको bosom नहीं बोलना, इसको bosom बोलना है. bosom buddies मतलब my best friends. So एक और वर्ड आपने सीख लिया. पिछले क्वेश्चन में कौन सा वर्ड सीखा था? पाल्स. फ्रेंड्स को और क्या बोल सकते हैं? पाल्स. अब क्या बोल सकते हैं? बडीज, ठीक है. माई bosom buddies आर रियली pivotal to me. pivotal to me मतलब दे आर रियली वेरी important to me, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? important. They are really very important to me because I know I can really count on them. really count on them मतलब मैं उनको गिन सकता हूँ कि ये मेरे साथ खड़े हैं बंदे, ठीक है. they always put in an appearance. ये एक idiom है, put in an appearance मतलब वो हमेशा आते हैं. when the push comes to shove. when the push comes to shove मतलब when there are difficult times, जब कोई भी रिस्की मोमेंट होता है या डिफिकल्ट टाइम या बैड टाइम्स होते हैं, वो हमेशा आते हैं. they put in an appearance, they always show up. show up एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको भी यूज कर सकते हो. they always show up मतलब हमेशा आते हैं जब भी कोई बैड टाइम्स होते हैं, और whenever there are any risky moments, ठीक है. तो इसमें हमने कौन कौन सी वोकैबुलरी आपने सीखी? bosom वर्ड सीखा, bosom buddies. buddies हम फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं. pivotal very important, count on them मतलब I can rely on them, depend on them. they always put in an appearance. put in an appearance मतलब they always show up. push comes to shove मतलब बैड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है. अब हमारा आंसर क्या हुआ? माई bosom buddies आर रियली pivotal to me because I know I can really count on them. they always put in an appearance when the push comes to shove. So next question is, where do you often meet? आप अक्सर कहाँ मिलते हो? We often catch up with each other. अब नया वर्ड कौन सा हो गया? catch up. This is also a phrasal verb. कैच अप with each other मतलब मीट with each other on movies. हम अक्सर मूवीज पे मिलते हैं. Moreover, we tend to hang out on the beach on weekends. weekends पे हम बीच पे घूमने जाते हैं. There is a lot of banter. banter अब न्यू वर्ड हो गया. banter मतलब we have lot of chit chat मतलब talking, बहुत सारी बातें करते हैं. एंड वी शेयर द स्टफ विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ स्टफ शेयर करते हैं. स्टफ शेयर मतलब बातें, स्टोरीज, जोक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो इसमें आपने कितनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज सीखी. कैच अप, वी टेंड टू हैंग आउट, बेंटर, राइट. सो वी ऑफन कैच अप विद ईच अदर ऑन मूवीज. मोर ओवर वी टेंड टू हैंग आउट ऑन द बीच ऑन वीकेंड्स.
there is a lot of banter and we share the stuff with each other. So next question is, what do you usually do with your friends? आप अक्सर क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ? So यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ मेंशन करोगे जो अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ करते हो. We'll go for a casual hangout. अब ये देखिए, ये क्या हो गया? We will. तो आप कहोगे ये क्या है? We will कि मैं दोस्तों की हम हैंग आउट के लिए जाएंगे. इसका यूज़ will का यूज़ होता है हैबिट के लिए भी, फॉर अ रिपीटेड हैबिट. जब कोई भी आप हैबिट कोई भी काम बार बार करते हो उसके लिए हम will भी यूज़ करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना I used to या we used to go to, राइट? वहाँ पे आप we will भी लगा सकते हो. We'll go for a casual hangout, then we'll sit in the park and sometimes go for a coffee together in the Starbucks. हम कैजुअल हैंगआउट के लिए जाते हैं और कभी कभी हम पार्क में बैठ जाते हैं और कभी कभी हम कॉफ़ी पीने चले जाते हैं स्टारबक्स में. ऑन संडेज वी यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, और संडेज को हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं साथ में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू बिकम रियल फ्रेंड्स विद पीपल यू मीट ऑन इंटरनेट? क्या आपको लगता है कि आप जिन लोगों को इंटरनेट पे मिलते हो उनके साथ भी आप रियल फ्रेंड्स बन सकते हो? आई थिंक टू फोर्ज अ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, टू फोर्ज अ फ्रेंडशिप मतलब टू मेक अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गहरी और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने को बोलते हैं टू फोर्ज अ फ्रेंडशिप. I think to forge a friendship, it doesn't really matter how you bumped into each other. Bumped into each other मतलब how you meet, ठीक है? आप उनको कैसे मिलते हो, मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता जब आपने एक स्ट्रॉन्ग और डीप रिलेशनशिप बनानी हो. मीट बाय चांस, बम्प्ड इनटू या बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस. समटाइम्स यू कैन बी ऑन सेम वेवलेंथ इवन विद फ्रेंड्स फाउंड ऑन इंटरनेट. टू बी ऑन सेम वेवलेंथ मतलब टू हैव अ गुड रिलेशनशिप. आपकी उनके साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है जिनको आप इंटरनेट पे मिलते हो. इफ वी रिसीव द बेसिक क्वालिटीज ऑफ फ्रेंडशिप लाइक लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, अगर हमें बेसिक क्वालिटीज फ्रेंडशिप की जैसे कि लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी और रिस्पेक्ट मिले फ्रॉम ऑनलाइन मेट्स. अब आपने एक और वर्ड सीख लिया फ्रेंड्स के लिए, पाल्स, बडीज, है ना? उसके बाद अब क्या सीखा? मेट्स. वी कैन रियली हिट इट ऑफ. हिट इट ऑफ का मतलब गेट ऑन वेरी वेल. हम उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बन सकते हैं अगर हमें बेसिक क्वालिटीज़ फ्रेंडशिप की मिल जाएं, जैसे कि लॉयल्टी, वफादार हो, डिपेंड कर सकते हो, आपकी इज्जत करते हो दोस्त, तो आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, उनके साथ आपकी बहुत बनेगी. I think to forge a friendship, it doesn't really matter how you bumped into each other. Sometimes we can be friends, you can be on same wavelength even with friends found on internet. If we receive the basic qualities of friendship like loyalty, dependability and respect from online mates, we can really hit it off. So हमारा last question है इस topic का, Does it make things easier in a friendship if you have similar interests? अगर आपके interests सेम हैं, क्या इससे फ्रेंडशिप में आपको ईजी हो जाता है फ्रेंडशिप में रहना? Yes, definitely. If we share the common interests, the things become really easier in a relationship. हाँ, कि अगर हमारे इंटरेस्ट कॉमन होंगे, हम शेयर करेंगे, सेम हैबिट्स होंगी, है ना, तो रिलेशनशिप में रहना, फ्रेंडशिप में रहना बहुत ईजी हो जाता है. बाय दिस वी कैन रैपिडली सिंक्रोनाइज. इससे हमारा तालमेल बहुत अच्छे से बैठ जाता है, बहुत जल्दी बैठ जाता है. एंड वी कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज. स्पीक द सेम लैंग्वेज का क्या मतलब है? टू गेट इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप. टू गेट इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप. ठीक है, कि अगर हमारे इंटरेस्ट कॉमन होंगे तो हमारा तालमेल अच्छा बैठेगा और हमारी रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप एंड प्रोफाउंड हो जाएगी. ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1 के क्वेश्चंस, और इसमें आपने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, ईडियम्स सीखे. उनको आप पार्ट 2 में यूज़ करना, पार्ट 3 में भी यूज़ कर सकते हो आप.
ये सैम्पल आंसर कराने का ये मतलब नहीं था कि आप इसको सिर्फ पार्ट 1 तक सीमित रखो। आप मेरी वीडियो को पीछे जाके बैक जाके देखो, जहाँ जहाँ पर मैं लैंग्वेज आपको न्यू बता रही हूँ वहाँ पर पॉज करो और अपनी नोटबुक पर उन वर्ड्स को नोट डाउन करो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अच्छी लैंग्वेज लगती है उनको नोट करो। पार्ट 2 में कोई इडियम या कोई आपको यूज़ करनी है लैंग्वेज तो उसको यूज़ करके देखो। कोई क्यू कार्ड लो, सैम्पल क्यू कार्ड फ्रेंड्स के ऊपर, तो वो लैंग्वेज को वहाँ पर फिट करके बोल के देखो। ये यूज़ होगा लैंग्वेज को सही यूज़ करने का, ठीक है। और मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप किसी और वीडियो के ऊपर और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बैंड 7 और मोर लेने के लिए देखते रहिए गगन आइल्स प्रिंटरी। थैंक यू सो मच गाइस।